کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ سورج پورب سے نکلتا ہے اور پچھم میں جا کے ڈوبتا ہے، لیکن قیامت سے قریب ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جس دن کے سورج پورب سے نکلنے کے بجائے پچھم سے نکلے گا، اور جب سورج پچھم سے نکل جائے گا تو دنیا کے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، اور اس وقت ان کا ایمان لانا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا ایمان اس کو کوئی بھی نفع نہیں پہنچائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل جائے۔ فَإِذَا طَلَعَتْ، پھر جب سورج مغرب سے نکل جائے گا، وَرَأَى النَّاسُ، اور لوگ جب دیکھیں گے کہ پورب کے بجائے سورج پچھم سے نکلا ہے، نبی نے فرمایا فَآمَنُوا أَجْمَعُونَ، تو تمام کے تمام لوگ، دنیا کے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ ذَلِكَ حِينَ، اس وقت لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا، اس کا ایمان اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وَقَرَأَ الْآيَةَ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، یَوْمَ یَأْتِی بَعْضُ آیَاتِ رَبِّکَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِیمَانُهَا لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ، کہ جب تیرے رب کی نشانیوں میں سے، بڑی بڑی نشانیوں میں سے جب کوئی نشانی ظاہر ہو جائے گی، لا ينفع نفسا ایمانها، اس وقت کسی کو ایمان لانا اس کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جب تک کہ اس نے پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا، یا پھر ایمان تو لایا ہوگا مگر پہلے سے اس نے نیک عمل نہ کیا ہوگا، تب تک اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ سورج جب مغرب سے نکل جائے گا تو کسی بھی انسان کا ایمان لانا، اگر اس نے پہلے سے ایمان نہ لایا ہے اور پہلے سے ہی اس نے اگر نیک عمل نہ کیا ہے تو پھر اس کا اس نے ایمان لانا کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ انتظروا اِنَّا مُنتَظِرُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ وہ انتظار کریں، وہ انتظار کریں اس دن کا، اِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج انسان کس قدر غفلت میں پڑا ہوا ہے، آج انسان کس قدر آخرت سے بالکل غافل ہے، دنیا کے عیش و عشرت میں انسان لگا ہوا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں انسان ڈوبا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف کوئی دھیان نہیں، نہ نماز کی طرف کوئی دھیان، نہ روزے کی طرف کوئی دھیان، نہ ذکر و اذکار کی طرف کوئی دھیان، نہ توبہ و استغفار کی طرف کوئی دھیان۔ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جلد سے جلد جتنا جلد ہو سکے توبہ کر لیجیے، اس سے پہلے کہ توبہ کرنا بھی نصیب نہ ہوگا۔ توبہ کا دروازہ بہت بڑا ہے، جس طرح اللہ رب العالمین بہت زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ میں بہت بڑا دروازہ بنایا ہے، اور اس دروازہ کو اللہ نے اس دن بنایا ہے جس دن اللہ نے آسمان کو بنایا ہے، اور جس دن اللہ نے زمین کو بنایا ہے اسی دن اللہ نے توبہ کا بھی ایک دروازہ بنایا ہے، جو مغرب کی طرف ہے، جو شام کی طرف ہے، اور وہ دروازہ اتنا بڑا دروازہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دروازہ اتنا بڑا دروازہ ہے کہ اس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ ایک انسان اگر اپنی سواری کے سوار
से एक किनारे से दूसरा किनारे तक अगर जाए तो 70 साल लग जाएगा। इतना चौड़ा दरवाजा तौबा का दरवाजा है। और क़यामत के करीब ये सूरज जो निकलेगा उसी तौबा के दरवाजे की तरफ से वो सूरज निकलेगा। और जब सूरज निकलेगा तो फिर तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना बड़ा मेहरबान है, कितना रहम करने वाला है, किस कदर रहीम है, कितना करीम है कि अल्लाह ताला रोजाना अपना हाथ फैला देता है ताकि गुनाहगार तौबा कर ले। रोजाना अल्लाह ताला हाथ फैलाता है। अल्लाह ताला को मालूम है, पहले से पता है कि इंसान कमजोर है। इंसान को अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा है, जन्नत की लालच दी है, जहन्नम से डराया है, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है कि इंसान कमजोर है, वो गुनाह करेगा ही। इसलिए अल्लाह ने तौबा का दरवाजा भी खोल दिया है। और उसके बाद अल्लाह ताला रोजाना अपना हाथ भी फैलाता है ताकि गुनाहगार तौबा कर ले। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूबा मुसीउन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूबा मुसीउल लैल। अल्लाह ताला रोजाना रात को अपना हाथ फैला देता है ताकि दिन का गुनाहगार, जिसने सारा दिन गुनाह किया है, जिसने दिन भर गुनाह कमाया है, वो कम से कम अब अपने गुनाहों से तौबा कर ले। और इसी तरह अल्लाह ताला रोजाना दिन को अपना हाथ फैलाता है ताकि रात का गुनाहगार, जिसने रात की तन्हाई में, जिसने रात की अंधेरी में, जिसने रात की तारीकी में अगर किसी किस्म का कोई गुनाह कर लिया है तो वो अपना तौबा कर ले। रोजाना अल्लाह ताला रात को भी अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन का गुनाहगार तौबा कर ले, और दिन को हाथ फैलाता है ताकि रात का गुनाहगार तौबा कर ले। इतना अल्लाह ताला मेहरबान है। नबी ने फरमाया, हत्ता ततलुअ अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा, यहाँ तक के सूरज मगरिब की जानिब से पश्चिम से निकल जाए। अल्लाह ताला हाथ फैलाता है रोजाना दिन और रात। और जब तक फैलाता रहेगा जब तक के सूरज मगरिब की जानिब से ना निकल जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज इंसानों को क्या हो गया? आज इंसान इस कदर गाफिल क्यों है? आज इंसानों का अल्लाह की तरफ ध्यान क्यों नहीं है? आज इंसान रुजू अल्लाह क्यों नहीं होते हैं? आज इंसान को आखिरत का खौफ क्यों नहीं है? अल्लाह का डर क्यों नहीं है? इंसान दुनिया के अंदर इस कदर मुलव्विस है, इस कदर उसकी रंगीनियों में फंस चुका है कि उससे निकलना उसके लिए मुश्किल हो जा रहा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, सारी दुनिया की सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करती है, सिवाय जिन के और सिवाय इंसान के। ये जिन और इंसान की अक्सरियत अल्लाह के सामने नहीं झुकती है। बाकी सारी कायनात की सारी चीजें, चाहे इस कायनात का दरख्त हो, पेड़ हो, पौधा हो, पत्थर हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, सारी की सारी चीजें अल्लाह के सामने झुकती हैं, अल्लाह की तस्वीर बयान करती हैं। जो सब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। दुनिया की सारी चीजें अल्लाह की तस्वीर बयान करती है। इस कायनात की हवाएं, इस कायनात की फिजाएं, इस कायनात का ज़मीन, इस कायनात का आसमान, इस कायनात का चांद, इस कायनात का सूरज, सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकते हैं। ये सूरज अल्लाह ने इतना पावरफुल इसको बनाया है कि जिसके निकलने को अल्लाह ने मगरिब की तरफ निकलने को अल्लाह ने क़यामत की निशानी बतलाई है। इसको इतना हॉट बनाया है, इतना ताकतवर बनाया है, इतना गर्म बनाया है, इतना जोशीला बनाया है। इस सूरज को
डूबता है जाके, और डूबने के बाद कहाँ जाता है मालूम है? वो अल्लाह के अर्श के नीचे जाता है और जाके सजदा करता है वो सूरज, और सजदा करने के बाद अल्लाह से इजाजत मांगता है कि अल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं दोबारा मशरिक में जाऊं, मैं दोबारा पूरब में जाऊं, और पूरब में जाकर के फिर मैं निकल जाऊं, ताकि दुनिया वालों को कोई परेशानी ना हो, दुनिया वाले किसी मुसीबत में ना पड़े। क्योंकि दिन जब होता है तो इंसान बहुत सारे काम करते करते हैं, सूरज को ख्याल है इंसानों का कि कहीं मेरे ना निकलने से इंसान परेशान ना हो जाए। इसीलिए जब अल्लाह ताला सूरज को जिस दिन क़यामत के करीब पूरब से निकलने से रोक देगा, उस दिन सूरज ये कहेगा, अल्लाह इंसानों का क्या हाल होगा, इंसानों का क्या होगा? ये सूरज से फायदा हमको पहुंचता है, हमसे सूरज को कुछ भी फायदा नहीं पहुंचता है। सूरज अगर ना रहे तो नुकसान हमारा है, हो सकता है, मगर हम ना रहे तो सूरज का कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। सूरज कहेगा अल्लाह इंसानों का क्या होगा? आइए हदीस देखते हैं। एक हदीसें मुख्तलिफ हदीसें हैं, उन तमाम हदीसों का मैं निचोड़ आपके सामने बयान कर रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग अगर बयान किया जाए तो वक्त इतना नहीं है। उन तमाम हदीसों का निचोड़ और शुरू करता हूँ मैं मुस्लिम अहमद की हदीस से। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बयान करते हैं कि मैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गधे पर, एक गधी पर मैं सवार था, गधे पर मैं सवार था, और गधे पर एक कंबल या चादर उसके पलान के नीचे रखा हुआ था। ठीक सूरज डूबने का वक्त था। अल्लाह के नबी ने मुझसे सवाल किया, पूछा, अबू ज़र पता है ये सूरज कहाँ डूबता है? ये सूरज जो है, ये सूरज कहाँ डूबता है, तुम्हें पता है? अबू ज़र कहते हैं, जी अल्लाह के नबी मुझे मालूम नहीं है, अल्लाह के रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये सूरज जो है ये दलदल के चश्मा में जाकर के डूबता है। इससे पहले आपने याजूज और माजूज का किस्सा सुना था, उसमें जुलकरनैन के बारे में भी आपने सुना। बात बड़ा असर रहा, ये जुलकरनैन जब निकला और मगरिब के तरफ जाने लगा, हत्ता इज़ा बलगा मतलब इस शम्स से, यहाँ तक कि जुलकरनैन जब ये सूरज के मगरिब शम्स से, यहाँ तक कि ये जुलकरनैन जब सूरज डूबने की जगह में पहुंचा, वजदहा तो सूरज को पाया, सूरज को कहाँ पाया? दलदल के चश्मे में डूबता हुआ पाया। तो कुरान से भी साबित है कि सूरज ये दलदल के चश्मे में जाके डूबता है, और हदीस से भी साबित है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू ज़र पता है सूरज कहाँ डूबता है? कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। फरमाया कि सूरज ये दलदल के चश्मे में जाके डूबता है, और ये डूबने के बाद चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, जाते रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के अर्श के नीचे पहुंचता है। जब अल्लाह के अर्श के नीचे पहुंचता है, अल्लाह के अर्श के नीचे जाके सजदा करता है, और सजदा करने के बाद फिर अल्लाह से इजाजत मांगता है कि अल्लाह मुझे इजाजत दे दे, फिर मैं पूरब में जाऊं और जाकर के फिर मैं दोबारा निकल जाऊं। इसी तरह रोजाना करता है, हर दिन वो सजदा करता है अल्लाह के अर्श के नीचे, और हर दिन इजाजत मांगता है निकलने की, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इजाजत दे देता है, जिसकी वजह से सूरज निकलता है। मेरे भाई और अब आइए दूसरी और हदीसों में है कि जब क़यामत करीब होगी और सूरज अपने मामूल के मुताबिक पूरब से सूरज निकलेगा, मगरिब में जाके डूबेगा, और फिर चलते चलते अल्लाह के अर्श के नीचे जाके पहुंचेगा, फिर सजदा करेगा, अल्लाह से इजाजत मांगेगा, अल्लाह इजाजत दे दे, कोई जवाब नहीं मिलेगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा। सूरज कुछ देर तक खामोश रहेगा, कुछ देर गुजर जाएगी, फिर इजाजत मांगेगा, अल्लाह इजाजत दे दे, कोई जवाब नहीं।
दूसरी बार भी कोई जवाब नहीं। रात गुजरती जा रही है, सूरज इजाजत मांग रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। फिर तीसरी बार अल्लाह इजाजत दे दे, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं है। अब सूरज को पूरा पक्का यकीन हो गया कि अगर अब इजाजत मिल भी जाएगी तो मेरा सफर इतना लंबा है, रास्ता इतना लंबा है कि अब मैं मस्जिद तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा, अब मैं पूरब तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा, इतना लंबा सफर है। रात गुजर रही है, फिर कहेगा सूरज अल्लाह रात गुजरती जा रही है, सफर बहुत लंबा है, लोगों का क्या हाल होगा, मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंच पाऊंगा सूरज। ये सूरज कहेगा अल्लाह से, अल्लाह कहेगा कि आज तुम्हें पूरब में जाने की जरूरत नहीं है, आज तू यहीं से पलट जा, जहां से आया था वहीं से जाकर के फिर तुलू हो जा, यानी मगरिब में चला जा, पश्चिम में चला जा और यहीं से जाके तुलू हो जा। यार लोगों का हाल क्या होगा, अब वो रात लंबी होती जाएगी, सूरज फिर पलटेगा अपने उल्टे दिशा में, फिर वो मगरिब की तरफ जाएगा और रात इतनी लंबी होती जाएगी। एक रिवायत के मुताबिक ये 2 रातों के बराबर ये रात हो जाएगी और एक रिवायत के मुताबिक ये 3 रातों के बराबर ये रात हो जाएगी। लोगों का आलम क्या होगा, लोग परेशान होंगे, लोग बेचैन हो जाएंगे। कितनी बड़ी रात है, कितनी बड़ी रात है, कितनों भी सोने वाला इंसान होगा, कितनों भी अलार्म में लगा करके भी अगर नहीं उठने वाला इंसान है वो भी उठ जाएगा, वो भी बेचैन हो जाएगा, वो भी परेशान हो जाएगा। रिवायत के अंदर है कि एक इंसान तहज्जुद पढ़ने के लिए उठेगा, तहज्जुद पढ़ने वाला इंसान उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा, रात इतनी लंबी होगी फिर सो जाएगा और बूढ़े भी परेशान, बच्चे भी परेशान, जवान भी परेशान, यहाँ तक के जानवर भी परेशान है। छोटे छोटे बच्चे रोना शुरू कर देंगे, सुबह क्यों नहीं हो रही है, जानवर अपने चरागाह में जाने के लिए वो भी चीखने लगेंगे, इधर लोग भी रोना शुरू कर देंगे, लोगों के अंदर ये शोर-गुल पैदा हो जाएगा। आज सूरज को क्या हो गया है, सूरज क्यों नहीं निकल रहा है, दिन क्यों नहीं हो रहा है, सुबह क्यों नहीं हो रही, सुबह क्यों नहीं हो रही है, लोग बहुत परेशान होंगे। और फिर परेशानी के आलम में, लोग परेशानी के आलम में रोते धोते हुए मस्जिद की तरफ आएंगे। जिंदगी में जो मस्जिद कभी नहीं आता है, लेकिन उनके सब मस्जिद की तरफ दौड़ेंगे, मस्जिद की तरफ जब आएंगे इतने में देख लेंगे मस्जिद में दाखिल हो भी नहीं पाएंगे, देख लेंगे सूरज मगरिब की जाने से सूरज मगरिब से निकल रहा है। इतना देखते ही आमनू अजमाऊन, तमाम के तमाम लोग ईमान ले आएंगे, सबके सब ईमान ले आएंगे, मगर उनका ईमान लाना कोई भी फायदा नहीं होगा। जिंदगी भर उसके लिए मौका था, समय था, टाइम था, वक्त था, मगर उस वक्त उसने ईमान नहीं लाया, तौबा नहीं की, इस्तिग़फ़ार नहीं किया, आज ना उसका ईमान लाना काम आएगा, आज ना उसका तौबा करना काम आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा मेरे भाई और बहनों। इससे पहले कि सूरज मगरिब से निकले, कि अभी हमारी मौत आ जाए, मौत की भी कोई गारंटी नहीं है। हम तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों से अल्लाह से माफी मांगे। ये सारी निशानियां बयान करने का मकसद यह है, ये जो क़यामत की छोटी बड़ी निशानियां आपके सामने बयान की जा रही हैं, इसके बयान करने का मकसद यह है ताकि इंसान अपने गुनाहों से बाज आ जाए, इंसान अपने गुनाहों से ये दूर हो जाए और तौबा का इस्तिग़फ़ार करे और नेकियों की तरफ वो कदम बढ़ाना शुरू करे, नेकियों की तरफ वो आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें। यही मकसद है निशानियों के बयान करने। मेरे भाई और दोस्त, आज ये दुनिया हमें पाए तहकीर से ठुकराती है, लेकिन फिर भी आज हम गाफिल हैं, आखिरत को हमने भुला दिया है। आज हम गैरों की मुशाबियत इख्तियार कर रहे हैं, आज हमने अपना वक़ार खो दिया है, आज हमने अपनी इज्जत को खो दिया है, आज बुलंदी की बजाय हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, ताबके ख्वाब तगाफुल में रहेगा मुजरिम, ताबके ख्वाब तगाफुल में रहेगा
के देख जरा तू अपनी बस्ती, पाए तहकीर से ठुकराती है दुनिया तुझको, और तू भूल गया कौम परस्ती अपनी। मेरे भाइयों और फिर इंशाअल्लाह आइंदा जुमा क़यामत की बड़ी निशानियां आपके सामने बयान की जाएगी। इससे पहले कि मैं अपने खुतबा को खत्म करूं, आज मुझे आपके सामने एक मसला बयान करना, एक सवाल का जवाब देना, इसलिए 5 मिनट पहले मैंने अपने असल मौजू को छोड़ दिया है। यह मसला मुझे कई बार पूछा गया है, इससे पहले भी पूछा गया है, मगर वक्त की कमी की वजह से, खुतबा की तिलावत की वजह से मैंने जवाब नहीं दिया। वो मसला ये है कि किसी भाई ने सवाल किया है कि सारी मस्जिदों के अंदर, जितनी भी मस्जिदें, सारी मस्जिदों के अंदर नमाज के बाद जुमा का चंदा होता है और इस मस्जिद के अंदर नमाज से पहले चंदा होता है, आखिर कौन सही कौन गलत? मेरे भाइयों और दोस्त, जिस तरह सारी मस्जिदों के अंदर नमाज के बाद चंदा होता है, इसी तरह इस मस्जिद के अंदर भी नमाज के बाद ही, शुरू से हम छोटे थे तब से देख रहे थे कि नमाज के बाद ही इस मस्जिद के अंदर भी जुमा का चंदा हो रहा था। फिर मैंने देखा कि सलाम फेरने के बाद लोग तस्बीह, तहलील, जिक्र, अज़कार और सुन्नत और नवाफिल में मसरूफ होते हैं और इस दौरान लोग चंदा करने लगते हैं, जिसकी वजह से सुन्नत और नवाफिल में भी, जिक्र और अज़कार में भी खलल होता है और तस्बीह, तहलील में भी डिस्टर्ब होता है। तो फिर मैंने उस वक्त मना कर दिया कि लोगों के जिक्र और अज़कार में डिस्टर्ब हो रहा है और सुन्नत और नवाफिल में भी डिस्टर्ब हो रहा है, और ये वक्त सलाम फेरने के बाद इतना अहम वक्त होता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फर्ज नमाज के बाद की दुआ जो की जाती है वो दुआ को अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। ये वक्त इतना अहम वक्त होता है कि सलाम फेरने के बाद आसमान से फरिश्ते आ जाते हैं, फौरन फरिश्ते आ जाते हैं, जमीन और आसमान की खलाओं को भर देते हैं और उस शख्स के लिए दुआ करते हैं जो नमाज के बाद अपनी जगह में बैठा रहता है, जिक्र और अज़कार में बैठा रहता है, तस्बीह और तहलील करने लगता है, दुआएं करने लगता है, तो जब तक वो अपनी जगह में बैठा रहता है तब तक फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं, करोड़ों फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। क्या दुआ करते हैं? सही बुखारी की हदीस है, अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू, या अल्लाह तू इसके ऊपर रहम फरमा, या अल्लाह तू इसके गुनाहों को बख्श दे। इस बंदे के लिए जो सलाम देने के बाद अपनी जगह में बैठा रहता, जिक्र और अज़कार, तस्बीह और तहलील करता है, नबी ने फरमाया जब तक वो अपनी जगह से उठ ना जाए, जब वो अपनी जगह से उठ जाता है तो फिर खत्म। फरिश्तों की दुआओं से भी मालूम हो जाता है, जिक्र और अज़कार से भी मालूम हो जाता है। हम देख रहे थे कि लोग सलाम फेरने के फौरन बाद, किसी एक जुमा की बात नहीं है, कभी कभार अगर होती वो अलग बात है, लेकिन हमेशा की बात जो है वो थोड़ा हमें गलत लगा कि लोगों के तस्बीह व तहलील में डिस्टर्ब हो रहा है। फिर जब मुझसे ये सवाल किया गया तो मैंने तहकीक करना शुरू किया, और जब मैंने तहकीक किया तो मुझे ठीक एक फतवा मिल गया इसके बारे में, और वो किताब मदरसा के अंदर भी मौजूद है। फतवा अल्लामा मुबारकपुरी का फतवा है, पेज नंबर 420 है। उनको ये सवाल भी किया गया था, यही सवाल कि सलाम फेरने के फौरन बाद जो लोग अपने अपने लाइन में जो डब्बा घसकाते हैं, डब्बा खड़काते हैं या फिर चंदा करते हैं, तो ये मसला कैसा है? उस वक्त उन्होंने ये जवाब दिया था, फतवा मौजूद है कि सलाम फेरने के बाद जो लोग डब्बा खड़काते हैं या जो लोग चंदा करते हैं उनके जिक्र और अज़कार में डिस्टर्ब होता है, उनके तस्बीह और तहलील में डिस्टर्ब होता है, उनके फर्ज और नवाफिल में डिस्टर्ब होता है। इसलिए वहाँ पर ये अमल करना वाजिब तर्क है, यानी उसे छोड़ना बिल्कुल जरूरी है, लाजिम है। ये फतवा मैंने लगभग महीना दिन पहले देखा था। ये फतवा मदरसा के अंदर एक किताब है, अगर किसी को देखना हो देख ले, फतवा मौजूद है कि सलाम फेरने के बाद का जो ये अमल है, जिक्र और अज़कार में डिस्टर्ब होने की वजह से और बहुत सारी फजीलतों से महरूम होने की वजह से वाजिब उत्तर की वहाँ छोड़ना बिल्कुल जरूरी है। सलाम फेरने के बाद हम नहीं कर सकते। जहाँ तक रही ये बात कि हम इस वक्त सलाम फेरने से पहले करते हैं, ये सब सीधा होते होते हमारा चंदा भी हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 मिनट के अंदर जल्दी से इधर सब भी सीधा हो जाए, हर लाइन से लोग निकल जाएं
ताकि मस्जिद के लिए तामीरी काम भी जरूरी है, मस्जिद का चंदा करना भी जरूरी है, तो ये काम भी हो जाए। इसलिए हर सबसे निकल जाए, इधर सब भी सीधा हो जाए और 2 मिनट के अंदर बस सबसे इस पार से उस पार गुजरना है, सब सीधा होते होते चंदा का कलेक्शन भी हो जाए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब सबों को सीधा किया जाता था, वो सबों के दरमियान से गुजरा करते थे, लोगों के सबों को सीधा करने के लिए वो गुजरा करते थे। सब जब सीधा किया जाता था तो गुजरना सबके बीच से ये भी साबित है तो गुजर सकते हैं। ताहम फिर भी हम इस मामले में उलमा की तरफ रुजू करेंगे। अगर इस मामले में कोई काबिल एतराज होगा कि इस वक्त भी चंदा करना सही नहीं होगा, तो कोई तीसरा विकल्प में हम ढूंढेंगे, उलमा की तरफ रुजू करेंगे, मुफ्तियों की तरफ रुजू करेंगे। अगर यहाँ भी मना होगा तो कोई तीसरा विकल्प हम निकालेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे पहले की जिम्मेदारों ने इसीलिए दान पेटी भी लगा दिया है, हर जगह